The difference between ordinary and extraordinary is not luck, but the determination to do something, the discipline to stay consistent, and the dedication to give you 100%. And yet, today we have another inspiring story of Aryan, who's scoring 715 out of 720 in the RE-NEET 2026 examination conducted on 21st of June 2026. So, welcome, Aryan. How are you doing? I'm fine. I'm really glad that I'm really happy कि जो रिजल्ट आया है हाँ, एंड सीइंग माय पेरेंट्स टीचर्स बहुत ऐसे सररियल फीलिंग है अभी कि इतना कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना आ सकता है जी. मतलब तो आई एम फीलिंग ऑसम. Okay, before we begin, can you introduce yourself to our audience? I'm Aryan Gupta. I've been preparing for NEET since 2 years and I'm scoring 715 marks in the RE-NEET 2026. I hope to join the AIMS Delhi, and I do aspire to become a doctor, specifically an oncologist. Okay, great. We would also like to know about your family, Aryan. Can you introduce your family members in this video? So yeah, I come from a family of doctors, and my mother is a gynecologist, Dr. Reenu Gupta. Okay. My father is an anesthesiologist, Dr. Sachin Gupta. मेरा बड़ा भाई क्या कहते हैं मुझसे 1 साल बड़ा है और he scored all India rank 54 in NEET 2025 and he is studying in MEMC Delhi. Okay. So मेरे नानी नानू in general like every branch of my family are doctors. So that's right. Okay. So Aryan, we would also like to know about your 10th and 12th scores. In 10th boards में मेरे maths के अंदर world top किया था 200 marks आया था 200 and I was studying Cambridge board then. Okay. 11th and 12th में CBSE. In 12th I scored 97.2%. Okay. So like you did your 10th from Cambridge board and then you made a transition to the CBSE board. So did you find it challenging when you made a transition from the Cambridge board to the CBSE board? या मतलब शुरुआत में हल्की सी दिक्कत आई थी कि क्योंकि जो कैम्ब्रिज का सिलेबस है इट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम सीबीएसई सिलेबस कि कुछ चीज़ें पहले बच्चों ने करी रखी थी मैंने नहीं करी रखी थी पर फिर 1-2 महीने बाद वो सब कुछ लाइक यूनिफॉर्म लाइक एक लेवल पर आ जाता है सारा कि इतना कुछ डिफिकल्टी नहीं है कैम्ब्रिज के करने के कारण उल्टा कई जगह बेनिफिट भी हुआ फिजिक्स वगैरह में. Okay. So besides coming from the family of doctors, Aryan, we would like to know, was there any other person or any role model that who inspired you to get into this field of medicine? Actually, like, it was not a person or some role model. The strongest desire कि मैंने डॉक्टर बनना है वो 3rd क्लास में था जब my grandmother passed away because of cancer. Okay. And being in a family of doctors, we could not do anything about it. I got to know my grandfather also passed away because of cancer. So हल्का सा मतलब काफ़ी हॉरिफाइंग लगता था कि इतना वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स इतने हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स की फैमिली से होने के बावजूद भी वी कुड नॉट सी इट कमिंग. सो आई जस्ट तब तो बच्चा था मैं और लाइक अभी भी सीख ही रहा हूँ अभी भी मुझे कुछ नहीं पता बट हाँ मैं तब से प्लेज में आया था कि सम डे आई होप टू लाइक फाइंड अ क्योर टू कैंसर. अभी मुझे आई डोंट नो हाउ आई डू इट बट दैट्स माय ड्रीम. तो ये इसलिए डॉक्टर बनना था. Okay. So Aryan, I would like to know why did you choose Education Spire for your coaching, or what are the factors that one should consider while considering a coaching institute for his or her preparation? सबसे पहले कि जो टीचर्स हैं यहाँ के वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे और यहाँ से रिजल्ट्स आते भी थे तो लाइक हमने प्रेफर किया कि कहीं बाहर जाने के बजाय घर के पास इन दी कंफर्ट ऑफ होम यहीं पे कोचिंग ले लेते हैं. और यहाँ पे मेरे बड़े भाई ने भी आदित्य गुप्ता ने क्या कहते हैं 2 साल कोचिंग ली और ही ऑल्सो स्कोर्ड ब्रिलियंटली. So I had no doubt. So as you told that your elder brother, he has already qualified last year for NEET and he scored a good rank of AIR 54. Like being under the guidance, what were the initial tips that your brother provided you? The most distinctive thing that I remember is that उसने कहा था कि अपना दिमाग ज़्यादा ना चलाना कि जो टीचर्स बोलते हैं वैसा फॉलो करना जो तुम्हारे कोचिंग में टीचर्स में समझा रहे हैं पढ़ा रहे हैं उससे उसके बियॉन्ड कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो मतलब 15-20 सालों से पढ़ाते आ रहे हैं. दे हैव अ लॉट ऑफ उन्होंने हज़ारों बच्चे देखे हैं तो उन पर डाउट ना करना और लाइक उनको शुरुआत से ही ब्लाइंडली फॉलो करते रहना
ज़्यादा अपना दिमाग ना चलाना प्रिपरेशन के लिए। और Okay. ये इनिशियली बहुत ज़्यादा होता है यूजुअली कि हम अपना दिमाग लगा लेते हैं, हम ऐसे पढ़ लेते हैं। तो उसने शुरुआत में फ्रॉम द गेट गो ये बोल दिया था कि जस्ट फॉलो द टीचर्स माइंड, दैट वर्कड आउट। Okay. So, Aryan, may I know how much were you scoring in the first examination, that is the NEET 2026 examination, जो कि 3rd of May 2026 को conduct हुआ था और cancel हो गया था? That time I scored 696 out of 720. 696 out of 720. Okay. What was your reaction जब आपने ये सुना था कि NEET 2026 का जो initial exam था वो cancel हो गया और re-NEET 2026 announce हो गया? To be honest, I was a bit relieved Okay. कि जो नीट पेपर वन था had not gone, अच्छा पेपर गया था मेरा, ऐसी जी। बात नहीं है, पर मेरी एक्सपेक्टेशंस जितना अच्छा नहीं गया था। आपको पता होगा कि कितने बच्चों के 720 भी आ रहे थे उस टाइम पर, तो एक सेंस ऑफ रिलीफ था कि लाइक ओके आई हैव गॉट अनदर चांस। पर ये था कि मतलब 2 साल से पढ़ते आ रहे हैं, फिर से मतलब ये भी नहीं पता कि 40 दिन पढ़ना 50 दिन पढ़ना है, बाद में नोटिस आ गया था कि 40 डेज पढ़ना है। तो ये था कि हाँ फिर से सब कुछ फिर से पढ़ना पड़ेगा, वही वापस किताबें खोलनी पड़ी। बट हाँ, मुझे इतना कुछ नहीं बुरा लगा था। मैं जिस दिन अनाउंसमेंट आई 13 में से आई स्टार्टेड स्टडीइंग। ओके, सो जो ये 1 और 1.5 month का टाइम पीरियड मिला था बिटवीन द कैंसिलेशन ऑफ द फर्स्ट एग्जामिनेशन एंड द री-नीट 2026 एग्जामिनेशन, इसमें क्या एडिशनल हैबिट्स आपने इंट्रोड्यूस किए अपने स्टडी रूटीन में जिससे थोड़े इफेक्टिव रिजल्ट्स? स्टडी रूटीन में तो कोई चेंज नहीं था, जितनी तैयारी मेरी नीट वन में थी उतनी तैयारी री नीट में थी मेरी। ये था कि मैंने अपने आप से इतनी एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दिया। पहले था कि मुझे यही कॉलेज चाहिए, यही रैंक लाना है, तो पहले पेपर में आके इजी पेपर देके पैनिक कर गया था और इसलिए मतलब एक क्वेश्चन फिजिक्स का छूट भी गया था मेरा उस पेपर में। ओके, इस बार ही इतना स्ट्रेस नहीं लिया और इतना क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखी अपने आप से, और ये रियलाइज़ कर लिया कि चलो कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, कि जितना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ उतना ही कंट्रोल कर सकता हूँ, बाकी तो मतलब कुछ तो ऊपर वाले के हाथ छोड़ दो। जी, तो उसने काफ़ी मदद करी इसमें। ओके। So talking about the three major subjects of NEET examination, physics, chemistry and biology, which one is your favorite? माइनस फिजिक्स, क्योंकि Physics. मतलब उसमें एज सच वही कि रट्टा नहीं होता है इतना, दिमाग लगा सकते हो और लाइक इंटरेस्टिंग बहुत लगता है मुझे। Okay. फिजिक्स जनरली बहुत इंटरेस्टिंग। जैसे बहुत बच्चों को फिजिक्स काफ़ी चैलेंजिंग लगता है, नाइटमेयर की तरह लगता है। आप फिजिक्स जब पढ़ने बैठते थे, सो व्हाट वर द टिप्स एंड ट्रिक्स यू इनकलकेटेड इन योर स्टडी प्रैक्टिस कि आपको फिजिक्स इतनी इजी और इंटरेस्टिंग लगती थी? सबसे पहले तुम्हें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि एक टीचर से पढ़ना है और लाइक जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसे फॉलो करो कि सही पढ़ा रहे हैं, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं बहुत। घर आओ, नोट्स पढ़ो, जितने क्लास के आज पढ़े हैं वो नोट्स पढ़ो, और जितना जो डीपीपी दी थी, कोई असाइनमेंट दी थी, वो उस दिन की सॉल्व कर लो। डाउट है पहले कोशिश करो कि खुद से अगर कर सकते हो। मैंने कई बार 30 मिनट्स 40 मिनट्स भी लगाए हैं एक क्वेश्चन पे कि सॉल्व करने की, क्यों नहीं हो रहे शुरुआत में। पर अगर नहीं होता फिर टीचर से पूरा पूछ लो कि इसे अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को, कि अगर कोई अप्रोच समझ आ गई, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए फिर गलती ना करो। इसलिए मुझे लगता है दैट वुड हेल्प। टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री में जैसे आपके 3 सेगमेंट्स हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, तो what is one suggestion or one tip that you would like to suggest for all the 3 segments, physical, inorganic and organic, that can be helpful for the upcoming NEET aspirants? फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो ज़्यादा एनसीईआरटी इतनी इंटेंसिव ज़रूरी नहीं है। मैं उसमें नोट्स जितने पढ़े हैं और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चैप्टर जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह वो मेरे लिए बहुत कंसेप्चुअली चैलेंजिंग थे। और नोट्स पढ़ो। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली पढ़ने की लोड़ नहीं है, 1-2 बार ही पढ़ लिया काफ़ी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जैसे आयनिक वगैरह, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी करते रहोगे, जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं वैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ अपनी अप्रोच डेवलप करते रहो कि कैसे अप्रोच करना है, अंडरस्टैंड कैसे करना है, कि इतना ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, कि ऐसा रखो कि इतने क्वेश्चंस हो जाएं कि लास्ट में पेपर आता है सारे क्वेश्चन देखे हों। अभी नीट वन में तो हेल्प करेगा, जैसे पहला पेपर आया था वैसे सारे क्वेश्चंस, कुछ नया क्वेश्चन नहीं था, पर रीनीट के अंदर नए क्वेश्चंस थे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस करने के बजाय ज़्यादा ज़रूरी है बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना सब्जेक्ट की, फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिक्स की, तो वो हेल्प करेगा। बात है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, एनसीईआरटी हर लाइन बहुत ज़रूरी है।
जैसे D&F ब्लॉक वाले चैप्टर्स हो गए, P ब्लॉक हो गया, मैंने लास्ट तक आते आते भी इनकी एनसीईआरटी सारी पढ़ी थी, सारे रट्टा मारी थी मैंने। और बाकी नोट्स पढ़ लिए, पर एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नोट्स हो गए और अलग अलग क्वेश्चन बैंक्स हो गए, जैसे नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद जो असाइनमेंट्स दी आती है, मॉड्यूल्स दी आती है, वो सॉल्व कर लो। एनसीईआरटी भी अगेन ऑर्गेनिक इतनी ज़रूरी नहीं है, एक्स्ट्रा पॉइंट हाईलाइट कर लो, लास्ट में आके हाईलाइटेड पॉइंट्स के बाद में काम आएंगे जो नोट्स में मालूम नहीं है। एक्स्ट्रा बुक्स हेल्प कर सकती हैं, जैसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में MS चौहान हेल्प करती है, और क्या कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में N अवस्थी ने काफ़ी हेल्प करी, बट इनऑर्गेनिक के लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा सच बुक नहीं करी थी। ओके। और बायोलॉजी की अगर बात करें तो बायोलॉजी के लिए आपने क्या फॉलो किया था? बायोलॉजी तो पहले तो शुरुआत में जब क्लासेस चलती तब तो नोट्स और एनसीईआरटी दोनों, और लास्ट में आते आते एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा बारी पढ़नी पड़ती है कि जब तुम क्वेश्चन देखो कि साथ में ओके ये लाइन है, तभी टिक टिक मार दिया, लाइक 10-15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर बहुत कम क्वेश्चन होते हैं। नीट 2025 में आए थे, और पर इस बार भी और पिछले फर्स्ट पेपर में नहीं आते एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन, तो एनसीईआरटी बस बार बार पढ़ते रहना जब तुम्हें जहन में ना बैठ जाए क्या लिखा है हर चीज़। ओके। आर्यन, अगर मैं बात करूँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको क्रैम करना ही पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा, जैसे कुछ फॉर्मूले हो सकते हैं या फिर कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को आप याद कैसे रखते थे कि आप रेगुलर इंटरवल्स में उनको भूलो नहीं? उसके लिए क्या करते थे आप? मैंने लास्ट मंथ के अंदर स्टिकी नोट्स लगाना शुरू कर दिया था। ओके। जैसे अगर अगर कभी देखोगे तो मेरे रूम की सारी दीवारें भरी पड़ी, ओके। कुछ बायो के इतने सारे चैप्टर्स हैं, उनको समराइज किया हुआ है कि वो लास्ट डे जाते थे देख लिए, बायो के चैप्टर्स हो गए, केमिस्ट्री हो गए, फिजिक्स के फॉर्मूले हो गए, जो पता है कि बाद में नहीं बार बार नहीं पढ़ जाना, भूल जाते हैं, जी। तो वो मैं स्टिक करके अपनी दीवार पे कि आंख बाबरी उनके सामने जाती रहे, और वो ये कि बाबर ही पढ़ लिया वो चीज़। अगर मैं बात करूँ, जो नीट 2026 का पेपर था जो कैंसिल हो गया, और री नीट 2026 का पेपर जो अभी हुआ है, अगर मैं दोनों के डिफ़िकल्टी लेवल्स को कंपेयर करूँ तो अनडाउटेडली री नीट 2026 वाज मोर डिफिकल्ट। बट इसके अलावा और क्या क्या चेंजेस आपने देखे री नीट 2026 के पेपर में एज कम्पेयर टू द नीट 2026 एक्चुअल पेपर, द कैंसिल्ड पेपर? अगेन कि जो नीट 26 जो 3 मई को हुआ था, उसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा गए थे, हल्के थोड़े कैलकुलेशन बेस्ड थे, कि उसमें वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं था कि इसके जैसे इतने बच्चों के 720 आ रहे हैं, इतने बच्चों के 715 आ रहे हैं, 716 आ रहे हैं, उसमें नीट वन में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं था कि फिजिक्स, ना ही फिजिक्स डिफिकल्ट थी, ना ही केमिस्ट्री डिफिकल्ट थी, ना ही बायो डिफिकल्ट थी। पर रीनीट के अंदर फिजिक्स का लेवल वाज गुड, फिजिक्स अच्छे लेवल की थी, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, जेई मेंस के लेवल की फिजिक्स थी, और नए तरह तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे कि जो सिर्फ मतलब कि सिर्फ फॉर्मूले पढ़ पढ़ के या सिर्फ वो रट के क्या फॉर्मूले हैं, कैसा जो ट्रिक्स वगैरह, उन वैसे उस तरीके से नहीं होने थे क्वेश्चन। केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छे लेवल की थी, आई डिडंट से दैट जो मैंने जी मेंस का पेपर दिया था उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट थी केमिस्ट्री का लेवल इस बार। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ रहे हैं कि जब ये 1.5 मंथ का टाइम पीरियड इंट्रोड्यूस हुआ था, तो कहीं ऐसा लगा कि वो जो आपका पहला मोमेंटम बना हुआ था एक स्टडी का, एक रूटीन का, वो कहीं पे ब्रेक डाउन हुआ, या कहीं आप थोड़े रिलैक्स्ड, रिलीव्ड हो गए और वो कंसिस्टेंसी फिर से रीगेन करने में, रीटेन करने में टाइम लगा, ऐसा कुछ हुआ? ऑफ कोर्स इट टुक लाइक 8-9 दिन लग गए थे वैसे, उतनी ज़्यादा पढ़ाई, उतनी एफिशिएंसी से पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि ऐसा था कि 10 दिन के लिए ब्रेन ऑलमोस्ट शट डाउन कर देता है जी। कि इतना ज़्यादा इंटेंसिवली पढ़ रहे थे 2 साल, तो मैंने कॉन्शियसली कि फिर वापस उस मोड में आना, उस जोन में आना, काफ़ी टाइम लग गया था उस चीज़ में, पर हाँ वो धीरे धीरे फ्लो बन गया था, मोमेंटम बन गया था फिर। During your entire journey, how has your family been supportive in all this? My parents were actually really supportive. My brother was really supportive. कि मैं तो कहूँगा कि अगर मेरे इतना रिजल्ट बिल्कुल भी ना आता, इट हैड नॉट बीन बिकॉज माई पेरेंट्स और आदित्य, कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता था कई बार। पेरेंट्स ने, मम्मा पापा ने बहुत ज़्यादा मदद करी कि शांत करने के लिए, कि टेस्ट ही तो है, मेरे मान लो कि टेस्ट ख़राब चला गया, मेरे मम्मा हमेशा कहते थे कि भाई तेरा फाइनल टेस्ट नहीं है, हम टेस्ट क्यों देते हैं,
कोई गलतियां देखने के लिए। अगर हम परफेक्ट होते ऑलरेडी, हमारे यहाँ पे टेस्ट में 720 आ रहे होते हैं, पॉइंट एक होते टेस्ट में का, जी हम गलतियां देखने के लिए टेस्ट देते हैं ना, तो वो बहुत शांत करते थे मम्मा। पापा हमेशा, मुझे था कि हल्की सी अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए होती थी, तो दे यूज्ड टू सिट विद मी जब मैं पढ़ता था। ऐसे मतलब मैं पढ़ता था, वो साथ में बैठ जाते थे, अपना काम कर लेते थे। और आदित्य, चाहे ही वॉज इन दिल्ली, वहाँ पे हर दिन उसे कॉल करता था कि ये काम कर लिया तुमने, इतना काम कर लिया, और कई बार डांट भी देता था कि क्यों इतनी टेंशन ले रहा है। वही एक बार पापा ने कहा था कि अगर टेंशन लेके मार्क्स बढ़ते हैं, या फिर टेंशन लेके पढ़ाई ज़्यादा हो जाती है, बेटर हो जाती है, तो ले लो टेंशन, पर दिख रहा है कि नहीं बढ़ रहा है तो क्यों नहीं। जी तो उन्होंने काफ़ी okay. And what was the impact of your teachers, how they influenced you in all this entire journey of 2 years? टीचर्स ने भी काफ़ी हेल्प करी, वो भी बहुत सपोर्टिव थे। आई रिमेंबर कि मेरे इतनी बारी 12 बजे 1 बजे तक डाउट्स लेते रहते थे, उनको मैसेज करते रहता था मैं कि ये डाउट है, ये डाउट है, ये डाउट है, और तब भी रिप्लाई कर देते थे मैसेज का। तो टीचर्स ने एक तो काफ़ी प्राइवेट रखी कि इतने ज़्यादा अच्छे टीचर्स मिले, जी और उन्होंने जेन्युइनली बहुत ज़्यादा एंड तक आके नीट जो थर्ड में हुआ तब भी, और रीनीट तक भी उन्होंने बहुत सामान दिया। ओके अगर मैं आपके एक टाइम टेबल जानना चाहूँ, एक स्टडी रूटीन पर डे के बेसिस पे, कि क्या आपका टाइम टेबल होता था, व्हाट वुड इट एग्जैक्टली बी? आफ्टर द क्लासेस आई यूज्ड टू कम होम, टेक अ नैप, रेस्ट लेता था थोड़ी देर, फिर जो उस दिन में कराया है, जो उस दिन पढ़ाया है, वो सब करता था। कि जैसे आज के नोट्स, जितने आज के नोट्स हैं वो पढ़ लिए, जो पिछली क्लास के थे वो भी पढ़ लिए, साथ में अगले दिन भी पढ़ लिए। जैसे आज फर्स्ट चैप्टर शुरू है तो फर्स्ट डे का काम, फिर सेकेंड डे फर्स्ट डे का काम, सेकेंड डे का काम, थर्ड डे फर्स्ट डे, सेकेंड डे थर्ड डे। तो इसलिए ऐसे ही बहुत सारी बार रिविजन पहली बार ही मिल जाती थी, और जितना पढ़ सका उतना पढ़ता था, घर आता था। और आई मेक श्योर दैट आई स्लीप 6 + 1 आवर, 1 आवर नैप प्लस 6 आवर स्लीप रात को। ओके जितना टाइम फ्री होता था ब्रेक के लिए नेटफ्लिक्स देख लेता था, जी कोई सीरीज देख लेता था, एनिमे देख लेता था। ओके ग्रेट। ऑल्सो जब आप बहुत डीमोटिवेटेड या स्ट्रेस फील करते थे, या फिर बहुत एग्जॉस्टेड फील करते थे, व्हाट वुड यू एग्जैक्टली डू टू चीयर योरसेल्फ अप, या फिर खुद को फिर से चार्ज करने के लिए व्हाट वुड यू डू? आई टॉक टू माई पेरेंट्स, आई टॉक टू माई ब्रदर, मोस्टली माई ब्रदर। उसने वो, अगर हल्का सा भी नेगेटिव लगता था कि यार मुझसे तो नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों इतना पढ़ रहा हूँ, क्यों इतनी जान मार रहा हूँ, जी स्पेशली आफ्टर नीट वन, जब वहाँ का झटका लगा था, तो तब डांट देता था कि क्यों कर रहा है। मतलब कई बार मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करी उन्होंने शांत करने में। और अगर आप बर्नट आउट फील कर लेता था तो एक बार ही बर्नट आउट है तो बाहर चले गए, आइसक्रीम खाने चले गए, ब्रेक ले ली, तो इस ऐसे मैं रिलैक्स रहने की कोशिश करता था। कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो अवॉइड करने चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज, व्हाट एनी 3 मिस्टेक्स इफ यू हैव टू काउंट, व्हाट इट कुड बी? फर्स्ट आई टेल अदर्स टू अपना जो सोशल मीडिया है या फिर इन जनरल एक्सपोजर स्क्रीन टाइम में मिनिमाइज करो। ये नहीं कि बिल्कुल बंद करो, चाहिए होता है, ज़रूरी होता है ब्रेक लेने के लिए, पर जितना मिनिमाइज कर सकते हो, क्योंकि ये होता है कि तुम्हारा टाइम तो जाहिर है देखने में, जो तुम स्क्रीन टाइम जितना भी है तुम्हारी मेंटल बैंडविड्थ भी कंज्यूम हुई है उसके अंदर। जितना पढ़ सकते हो, जब तुम पढ़ रहे हो तुम्हारा ध्यान इस चीज़ के ऊपर है, जो तुमने पहले यूट्यूब वीडियो देखी कोई, या फिर कोई रील देखी, तो जितना मिनिमाइज कर सकते हो करो, पर ये नहीं है कि देख लो। एक ये दूसरा कि अगेन टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, टेंशन लेके कभी भी मार्क्स इंप्रूव नहीं होते हैं। अपना बेस्ट दो, जो तुम कर सकते हो, जो तुम्हारे हाथ में है वो उतना कर सकते हो उतना ही करो, बाकी जो बाकी तुम्हारे हाथ में नहीं है वो भगवान खुद संभाल लेता है। बिल्कुल ओके अगर सपोज कोई अभी बच्चा 11th स्टैंडर्ड में गया है, तो इफ़ यू हैव टू गिव हिम एनी एडवाइस और सजेशन कि उसको प्रिपरेशन 2 साल के लिए कैसे रखनी है, इनिशियल एडवाइस अगर सजेशन देना हो तो क्या होगा? फॉलो योर टीचर्स ब्लाइंडली, फॉलो योर टीचर्स ग्रेट। दे नो मच मोर देन यू डू। हमें कई बार लगता है हम यूट्यूब देखते हैं कि ऐसे ऐसे पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, जो टीचर्स कहते हैं, जिस भी कोचिंग के हो तुम, जो वो कह रहे हैं उनको फॉलो करो जी एंड it will your then ride will be smooth. ओके ग्रेट। मॉक टेस्ट और रिवीजन, बेसिकली जो मॉक टेस्ट होते हैं, जो लास्ट मंथ में रेपिटेटिव मॉक टेस्ट होते हैं, उसका क्या बेनिफिट होता है, कितना बेनिफिट होता है, व्हाट डू यू थिंक?
लास्ट में के एक्सपोजर मिल जाता है कि एक बहुत सारे जो रीनीट के या फिर नीट के 1 महीने पहले जो फुल टेस्ट होते हैं बहुत सारे, पहली बात एक्सपोजर मिल जाता है बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को, मतलब जो हल्का सा हेल्प भी करते हैं गेज करने में कि क्या क्या पेपर का लेवल आ सकता है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक दूसरी बात, वो तुम्हें ऐसे मेंटल ट्यूनिंग ऐसे हो जाती है कि यार मॉक टेस्ट देते रहो 1 महीने में, नीट में तो एक मॉक टेस्ट ही है। अगर तुम ये सोच के चलो कि यार तुम इतने टेस्ट दे रही हो, फिर फाइनली तो टेस्ट अब बिल्कुल अलग है, फिर अच्छा नहीं जाएगा जो मैंने पहले अपनी नीट में सोचा था। फिर तुम 1 महीने से 2 महीने से मॉक टेस्ट देते आ रहे हो कि वही सोच के दे रहे हो 3 घंटे के अंदर इंस्टीट्यूट अपने जो भी तुम्हारे कोचिंग सेंटर है वहाँ पे दे रहे हो, तो उसको ऐसे ज्यूम करके चलो कि फाइनल पेपर में नीट है तुम्हारा, तो फिर फाइनली भी तुम ये ज्यूम करके चलो दैट इज अ मॉक टेस्ट ओनली एंड देन काफ़ी ईजी हो जाएगा। और ये हो जाता है कि एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर तुम्हें प्रैक्टिस करनी आ जाती है, तुम्हारे पास एक कैपिंग लिमिट आ जाती है कि तुम इतनी ही देर में इतने क्वेश्चंस करने हैं, तो वो भी काफ़ी हेल्प करती है टाइम मैनेज करने के लिए। Okay. Another question is, what kind of friend circle did you have, and what is the impact of having a healthy friend circle while you're preparing for the NEET examination? हेल्दी फ्रेंड सर्कल होना बहुत ज़रूरी है। हम जो तुमसे compete करने के बजाय तुम्हें सपोर्ट करे। जैसे लकीली मुझे इन 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्रेंड ग्रुप मिल गया था, जो सारे मतलब मेडिकल के ही थे, ऑल वर लाइक वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी केयरिंग पीपल। तो ये हो जाता है कि अगर कुछ स्ट्रेस हो, यू कैन जस्ट कॉल देम अप टू लाइक फील रिलीव, है ना? कई बातें कर ली, घूमने चले गए। हमारा शुरुआत में प्लस में ऐसा था कि हर एवरी 3 वीक्स में टेस्ट होता था, एंड आफ्टर एवरी टेस्ट वी यूज्ड टू लाइक हैंग आउट एंड लाइक गो समवेयर, 1 डेढ़ घंटा कहीं बाहर खाना वगैरह खा लिया। उससे मन काफ़ी शांत रहता है और लाइक इस वैसे बहुत ज़्यादा रिग्रेस और स्ट्रेसफुल टाइम पीरियड है 2 साल ये, तो उसमें जितना मैं शांत रख सकता हूँ उतना ही बेटर होता है। तो हेल्दी फ्रेंडशिप्स रखना जो तुम्हें मतलब गलत चीज़ें मतलब कि डीमोटिवेट ना करे तुम्हें कि भाई मैंने इतना पढ़ लिया, तुमने इतना भी नहीं पढ़ा, उनसे कंपटीशन नहीं होना चाहिए जी। फ्रेंड ग्रुप से। Okay. Aryan, what colleges are you targeting? So currently I'm targeting for AIIMS Delhi. Okay. Otherwise, beforehand I had options for MEMC Delhi and Safdarjung. These were my colleges. Okay. आपको क्या लगता है कि अगर हम कोई मेडिकल कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, what are the factors that we should be considering while selecting a medical college? I think कि यूजुअली MBBS में इतना तो नहीं होता है, पर कि एक्सपोजर कितना है, कि जैसे यहाँ पे कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, वहाँ पर जैसे एम्स दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है, इन जनरल गवर्नमेंट कॉलेज में कंपैरेटिवली ज़्यादा पेशेंट से क्या कहते हैं इंटरेक्शन वगैरह होती है, ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, तो दैट कैन हेल्प। बाकी तो आई थिंक स्टडी वाइज तो लाइक देयर इज़ नॉट नो डिफरेंस। हाँ, ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कितनी अवेलेबिलिटीज जो क्या कहते हैं इक्विपमेंट है, कुछ बेटर कॉलेजेस के अंदर, एम्स दिल्ली वगैरह के अंदर, उनके अंदर सबसे लेटेस्ट होता है, तो those things can Clinical exposure, infrastructure, Yes. faculties, all Yes. help in determining All the help in type of determining medical the college you're college. selecting. Okay. Apart from NCERT, अगर आपको कुछ books and resources suggest करने हो to the NEET aspirants, क्या क्या हो सकते हैं? For physics, जो मॉड्यूल्स मिलती है DC पांडे, एंड अगर इफ यू हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम, मैंने करी थी HC वर्मा। Okay. और क्या कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक आती है JPYQ, साथ में करना ज़रूरी है, बोथ ऑफ फिजिक्स एंड JEE मेंस के PYQ जी। मैंने करे थे, एंड तक आते आते फिजिक्स के भी करे थे और लास्ट 25 ईयर्स के, और क्या कहते हैं केमिस्ट्री के करे थे JPYQs मेंस के। केमिस्ट्री एक बुक आती है, एन अवस्थी नाम की बुक आती है मेडिकल के लिए, वो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक के लिए MS चौहान करे थे, उससे प्रैक्टिस करी। And biology के लिए? बायो के लिए एक डॉक्टर अली मैंने फॉलो करी थी, और MTG fingertips Okay. as an extra apart from NCERT at fingertips. NCERT Great. अच्छा आर्यन, व्हाट डू यू थिंक, अगर नीट 2027 CBT मोड में होता है तो क्या ये चैलेंजिंग होगा सिस्टम या फिर एस्पिरेंट्स के लिए? एस्पिरेंट्स के लिए आई थिंक CBT मोड फॉर द एस्पिरेंट्स बेटर होगा, पर ये है कि अगर CBT मोड होगा, जैसे JEE मेंस होता है, वो टोटल 20 शिफ्ट्स में लिया जाता है,
10 दिन होता है, और फॉर एक 13 to 14 लाख Right. एस्पिरेंट्स। अब नीट जो होगा 22 लाख एस्पिरेंट्स का होता है, हम्म। पर ये हो जाएगा कि फिर बहुत अलग अलग पेपर्स बनाने पड़ेंगे नीट के लिए। फिर अब वो यूनिफॉर्मिटी रहेगी नहीं रहेगी, वो परसेंटाइल कैलकुलेशन कैसे होगी, वो हल्की सी एस्पिरेंट के रैंक को अफेक्ट कर सकती है। बट ये होगा कि जो OMR का कि गलती से कोई गलत बबल फिल कर दिया, या फिर जो अलग से 15 मिनट है OMR फिलिंग के, वो कट ऑफ हो जाएंगे, तो इसलिए आराम से CBT के अंदर हेल्प हो जाएगी। ओके। ऑल्सो आर्यन, आई वुड लाइक टू नो कि वो जो 3 घंटे का समय था आपका रीनी 2026 एग्जामिनेशन का, उसको आपने कैसे मैनेज किया? क्या क्या सब्जेक्ट्स किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट किए? OMR फिलिंग का क्या पैटर्न था? हाउ डिड यू मेंटेन योरसेल्फ ड्यूरिंग दोस 3 आवर्स? वो मैं जानना चाहूँगा। एक्चुअली मैंने अपने आप को कन्विंस कर लिया था कि दिस इज मॉक टेस्ट। मैंने अपने आप को इतनी बारी बोला कि मैंने घर आके बायो के ये चैप्टर पढ़ने हैं, कि मैं किसी भी वे में ये ना सोचूं कि ये मेरा फाइनल पेपर है, क्योंकि अगर इतना ही सोचूंगा फाइनल पेपर है तो स्ट्रेस होगा कि इतना कि 2 साल इतना पढ़ लिया, बाद में रैंक क्या आएगा, ये सब कुछ मैंने कॉन्शियसली बहुत कोशिश करके छोड़ दिया सोचना। जो पेपर है शुरू किया, फिजिक्स के क्वेश्चंस करे। अब थोड़े गलत क्वेश्चंस थे, मेरा पेपर जो सेट था 80 था, उसका क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन गलत था, उसका फोर्थ क्वेश्चन गलत था, तो तब लगा था हल्का सा ये तो क्वेश्चन गलत आ गए। अपने आप डाउट किया ऑफकोर्स पहले कि यार क्वेश्चन तो गलत नहीं हो सकते, मैं ही गलत हूँगा, पर पता है वो बाद में फिर ग्रेस भी हो गई थी, क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था जो गलत क्वेश्चन था। तो मेरा गोल था कि 1 घंटे के अंदर फिजिक्स कर लूँ, बट हल्की चैलेंजिंग थी, तो 1 hour 5 minutes 1 hour 10 minutes के अंदर हो गई थी। Chemistry I solved it in 45 to 50 minutes, and Okay. bio was also like solved in 45 minutes. Okay, and what was your pattern of filling the OMR? मेरा शुरुआत से था कि पहले सारा पेपर सॉल्व करूंगा, फिर एंड में OMR के बबल्स फिल कर लूंगा। Okay, okay. तो लास्ट में OMR फिल करने में how much do you think was the approximate time you took? यूजुअल से हल्का ज़्यादा, वरना तो आई टेक यूजुअली 10 to 12 minutes। उसमें हल्का था ना कि आई कैन नॉट फॉल्टर, Yeah. तो उसमें हल्का 15 minutes लग गए। Okay, okay, great. तो आर्यन, विल हैव अ क्विक रैपिड फायर विद यू नाउ, ठीक है? आपको इंस्टेंटली जवाब देना है, ठीक है? यूट्यूब लेक्चर्स या ऑफलाइन लेक्चर्स? ऑफलाइन। पेन पेपर नोट्स या डिजिटल नोट्स? पेन पेपर नोट्स। लेट नाइट स्टडीज या मॉर्निंग स्टडीज? फॉर मी मॉर्निंग स्टडीज। Okay. 1 hour studying physics or 1 hour studying chemistry? 1 hour studying physics। 1 hour studying physics, okay. Any particular chapter if you would have to drop from the NEET syllabus? Botany। Chapter? Morphology and flowering plants। Morphology of- Anatomy and flowering plants। Anatomy of flowering plants. Okay, great. Any particular snack which you mostly consume while you were sitting for Ice study? cream। Ice cream. Thank you, Aryan, for joining with me, and really wishing you all the best for your results. And you have made a remarkable performance in the RENEET 2026 examination. Wishing you all the best for your results as well as your academic life ahead. Thank you। Thank you. Thank you.